So good evening to all of you and the students who are attending the class online also. So as far as the discussion of number system is concerned, now we are very much clear with the meaning of number system in terms of rational number and irrational number also, and how to represent a rational number on the number line, irrational number also on the number line. That's what we have seen in the last class. Now migrating towards the next phase of the same chapter. In today's class, we'll be starting the discussion of surds. प्लीज ध्यान से देखना जो भी मैं बता रहा हूँ आप यू हैव टू बी एब्सोल्युटली फोकस्ड इन द क्लास positive nth root of a real number is known as a surd. Positive nth root of a real number is known as surd. Repeat one kar do, right? Where this is called as radical sign and A is known as radicand. What I want to say, suppose I am writing root 2, right? So root 2 is basically an example of a surd, and this can be written as 2 to power 1 by 2. Root 2 is equal to what? 2 to power 1 by 2. Root 3 is what? 3 to power 1 by 2. Clear? पूरे मैथ्स का आज हार्ड होने जा रहा है. As far as the concepts is concerned, you will have to be absolutely clear with the conceptual detail. अब उसके बाद जितना भी नंबर सिस्टम करेंगे उसका बेस ये. Root 5 is equal to what? 5 to power 1 by 2. Is that clear? Now suppose we have 36. Root 36. Answer is what? 6. आया कैसे? Root 36 is basically what? 6 to power 2. स्क्वायर रूट के अंदर ही मैंने लिखा ना 6 to power 2. Now 6 to power 2 can be written as 1 upon 2. इसका साइन का मतलब क्या हुआ? 1 upon 2. This radical sign means what? 1 upon 2. So 6 to power 2 radical sign replaced as 1 upon 2. 2 and 2 cancel or not? 2 and 2 cancels. ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आया? 6. Root 49 can be written as 7 to power 2. Can be written as 7 to power 2 bracket. Up this is written as 1 upon 2 cancels out and hence the answer is 7. This is the way through which we get the answer for the perfect squares. Root 81 can be written as 9 to power 2. अब आप क्या कर सकते हैं? No need to write this or this kind of format. ये आपको लिखने की जरूरत नहीं. अब आप क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर को डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे. समझ में आया ना? क्योंकि स्क्वायर रूट क्या है? 1 अपॉन 2 और स्क्वायर से स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट का साइन हुआ ना, वैल्यू होगी ना स्क्वायर रूट, और ये 2 है, कैंसिल हुआ. स्क्वायर रूट है स्क्वायर कैंसिल. आंसर क्या आया बेटा? इज इट क्लियर? समझ में आना ना बेटा? व्हाट शुड बी द आंसर फॉर 121? टेल मी. इट इज इक्वल टू 11. 11 आपने कैसे बताया? 11 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल. आंसर is that clear? So the very first format is root a can be written as a to power 1 by 2. Is it clear? Right? Now root a, nth root of root a, nth root a कहा है ना, nth root of root a to n. देखो nth रूट है a का, के ऊपर पावर कितनी है? n. तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? a. इसको देखो आप, अब 1 अपॉन n.
अभी फिलहाल इसको भूल जाओ. What is the meaning of nth root of a to power 1 by 1. But I am saying nth root of p can be written as what? P to power 1 upon n. क्या ये क्लियर है? nth root of q should be written as what? Power. Nth root of 3 can be written as 3 to power. क्या ये क्लियर हो रहा है? अब मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा. nth root of 5 तुषार 5 to power 1 upon 9. 1 upon nth root of 9 भव्या nth root of 7 आप बताओ बेटा. nth root of 11 क्या होगा गोविंद? 1 upon. Clear है? Is it clear to you? That means अभी तक हमने क्या किया? Square root of a can be written as a to power 1 by 2. ये फर्स्ट. फिर दूसरा हमने किया nth root of a is a to power 1 upon. Now the third. Nth root of a to power n. Right? Nth root of a to power n should be equal to what? कौन बताएगा? It should be equal to a. कैसे देखो? इसलिए देखो ध्यान से. This bracket can be written as what? A to power 1 by n. Right? To power n, n, and n. Hence the answer is that clear? Therefore, nth root of a to power n is always be equal to n. Nth root of 5 to power n क्या होगा? What should be the answer? 7. Is it 7? Yes. कैसे लिखेंगे हम? 7 to power 1 by 3 to power this and this. तो आंसर कितना आया? Is that clear? What is the answer? 9 है ये. Is it clear? And hence you are clear with the first formula, second formula, third formula. Next, fourth. Nth root of a when multiplied with, dot means multiplication, multiplied with nth root of b, this is equal to nth root of a into b. यही बात क्लियर है भाई? 5 fifth root of 7 multiplied by fifth root of 8, what should be the answer? 56. 7 into 8. 3 root of 9 into 3 root of 7 is equal to 3 root of, right? This can also be written as, ध्यान से देखो क्या मैं से क्लियर हो गया ना? It comes out to be 3 root of 63. Can you tell me what is the answer of this? Cubic root of 27. Govind. What should be the answer? Okay. 27 to power 1 by 3. 27 को कन्वर्ट नहीं कर सकते. Can't I write this into this manner? 27 to power 1 by 3. Now just look at 27. 27 can be written as 3 to power 3 to power 1 by 3.
this and this, hence the answer is. You getting my point? Whenever you get this kind of power, obviously try to eliminate it by looking at this. Now I'll be asking you one question, very important. What should be the answer of this? Fifth root of 32. Fifth root of 32. 2. 2 to power 5. 2 to power 5. तुम निकाल कर देख लो. सर 2 आएगा. तो कैसे आएगा 2? सर 2 पावर 5 into power 5. Yes, very good. This is 2 to power 5. 1 upon 5. 32 is written 2 to power 5. और ये फिफ्थ रूट ये आ गया. 5 से 5 का आंसर कितना आ गया? क्या ये बात क्लियर है? Is it clear? So you should know that. I think so. This is clear to you. Fourth root of 7 and multiplied by fourth root of 9. What should be the answer? Fourth root of कितना आएगा? Fourth root of 63. First, ये clear है? Right, बेटा? This is clear to you. This is clear to you. This is also clear to you. And this one also, right? आपको इसका फेयर मिलेगा. I think so. इतना clear है ना? Next. Nth root of A when divided by nth root of B. So answer is nth root of A upon B. Right? Nth root of 5 when divided by thrice of this, when divided by thrice of 15. What should be the answer? Thrice of 5 by 15. That means और भी सिंपल हो सकता है ना 1 by 3. Clear है? Now tell me fifth root of 7 when divided by fifth root of 8. हाँ fifth root of 7. I think so clear हो गया. क्या आपको ये क्लियर है? श्योर? तो अभी तक जो हमने देखा, क्या देखा? रूट ए इज इक्वल टू ए बाई 1 बाई 5. फिर हमने देखा रूट ए टू पावर 2, ये कैंसिल हो गया ना, इज आल्सो इक्वल टू ए. फिर हमने ये भी देखा ए टू पावर 2, दिस आल्सो कैंसिल्स आउट, इज इक्वल टू ए. राइट? फिर हमने देखा nth रूट ऑफ ए when multiplied with nth root of b, nth root of a. nth root of a divided by nth root of b is nth root of a by b. मैंने कई बार रिपीट किया. और nth root of a 2 power n is equal to b इसके इक्वल होगा. गोविंद किसके इक्वल होगा? करके देखो. सही होगा. दिस इज इक्वल टू, बताया था ना मैंने, देख किसके इक्वल होगा. दिस रेडिकल साइन इज इक्वल 1 अपॉन n 2 पावर n. ये कैंसिल नहीं हो गया. दिस इज इक्वल टू. क्लियर है? आई थिंक सो यहां तक समझ में आया. अब हम एक नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूलाज की तरफ. First, root a plus root b when multiplied with root c plus root d, right, is written as. सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? पहले रूट ए से सबको मल्टीप्लाई करेंगे. रूट ए is multiplied with root c plus root d.
रूट ए को लिया, सबसे मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाला प्लस साइन लिया, फिर रूट बी को इससे मल्टीप्लाई किया। यही बात समझ में आई मैंने क्या किया? सबसे पहले इसको लिया आपने, इससे आपने तो पूरे को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस इसे लिया, सबको मल्टीप्लाई किया। नाउ दिस इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट सी, क्या होगा? वेरी गुड, रूट ए सी प्लस रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट, क्लियर है? तो कैन यू गिव मी द आंसर? रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 4 प्लस रूट 5, टेल मी द आंसर, निकाल के दो। प्लीज एग्जीक्यूट द आंसर। Those who are attending class online should also execute it. Sorry, root 45. आंसर क्या है? टोटल So root 8 plus root 8 plus root 12 plus हाँ सर, तो सबको ऐड नहीं कर सकते, आपने सबको ऐड कर दिया। मेरा आंसर सबसे पहले हम क्या करेंगे? रूट 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? फिर हम रूट 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, एग्रीड? नाउ दिस इज रूट 2, ये क्या हो गया? रूट 8, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? रूट, ये क्या हो गया? रूट। क्या ये आंसर सभी का आया है? ईमानदारी से बता, राइट? अब बेटा इसको आप ऐड नहीं कर सकते, अगर ये स्क्वायर रूट नहीं होता तब आप ऐड करते, और अगर सर रूट मतलब 2 बार रूट 15 होता तब हम रूट 15 और रूट 15 ऐड कर सकते हैं। तब कर सकते थे, ट्वाइस ऑफ रूट 15 यार। अब ये आंसर यही खत्म। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आया? इजी है ना? रूट 5 प्लस रूट 9, रूट 5 प्लस रूट 9 प्लस रूट 7, प्लस रूट 45 प्लस तो आपने देखा इसका आंसर क्या आया? रूट 5 से पहले आपने इसे मल्टीप्लाई किया इससे, फिर रूट 9 से आपने मल्टीप्लाई किया रूट 5 प्लस रूट 7, यही कर रहे हैं ना? तो ये आया रूट 25 प्लस रूट 35 प्लस रूट 45 प्लस रूट 66, यही आंसर आया सबका। लेकिन क्या रूट 25 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? तो फाइनल आंसर ये नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर उसको निकालो। 5 टू पावर 2 स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, बताया था ना मैंने? प्लस रूट 35 प्लस रूट 45, 45 है ना? 45 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 5, लिख सकते हैं यार, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 45 इज रिटन एज 9 इंटू 5, एग्रीड और नॉट? एंड 7 इंटू 9, 35 में लिखेंगे हम 7 into 5, but 7 into 5 has no significance because root 7 is an irrational number, root 5 is also irrational number. So it would be better to write root 35 as it is itself. समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो गया? This is equal to 5. ये root 7 root 5 वो तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसलिए से 35 ही रहने दो। लेकिन root 9 into root 5, root 9 into root 5 क्या होगा? 3 root 5. It is 3 root 5, right or not? क्योंकि रूट 9 इंटू रूट 5 क्या है? रूट 9 मल्टीप्लाइड विद रूट 5,
यह √7 मल्टीप्लाइड विद √9। क्या ये बात सबको क्लियर है या नहीं? बिल्कुल क्लियर है ना? डॉट का मतलब डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा ये 5 प्लस √35 प्लस √9 इज 3 इंटू √5, 3 √5 प्लस 3 √7। क्लियर है या नहीं? राइट, एंड हेंस द फाइनल आंसर इज 5 प्लस √35 प्लस 3 कॉमन आ गया, √5 प्लस √7 है। 3 इंटू दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? So what I want to say, you are not supposed to make this answer as a final answer. Try to make it as simple as possible. इसे सिंपल करना है। हर फिगर को ध्यान से देखो, क्या उसमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है? 25 में तो 5 ही परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, 35 में 7 इंटू 5 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसे एज इट इज लिखा। 45 में परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है या नहीं? कैसे? 9 इंटू 5 तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो 3 होता है। 63 में परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है नहीं? 7 इंटू 9 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। ऐसे करेंगे तब ये फाइनल आंसर माना है। क्लियर है बेटा जी? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला दे रहा हूं। तो दिस वाज अवर फर्स्ट फार्मूला, नाउ द सेकंड फार्मूला। √a प्लस √b का होल स्क्वायर। a plus 2 √ab plus b। x plus b whole square। यस, इसमें क्या लगेगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू b। क्या ये क्लियर है? क्या ये ईमानदारी से बताओ क्लियर है? दिस कैंसर, स्क्वायर प्लस स्क्वायर कैंसर, तो फाइनल आंसर क्या होगा? Agreed? Right? So tell me, √5 plus √7 is का होल स्क्वायर। प्लीज आंसर बोलेंगे नहीं, मैं पूछूंगा लिख कर देंगे। हाँ शिव्य, आंसर बताओ। Please don't speak the answer because let me see who is learning or not. You may show me the answer like that. Is the correct answer. Correct answer. तो ऐड किया तुमने आखिर में? आइडिया आया शिवा? ऐड किया फाइनल? राइट? यही होगा ना? आया नहीं? 5 और 7 मल्टीप्लाई क्यों नहीं होंगे? a स्क्वायर आपने तो 7th में किया है प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाइड विद b a इंटू बी मैंने बताया नहीं था, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 7 क्या होता है? 13। कोई बात इसमें 2 कॉमन भी तो आ सकता है। यहाँ तक छोड़ दो, लाना है तो 2 कॉमन भी ले लो, चलो ठीक है। 6 प्लस √35। क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? आई थिंक सो इट्स वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ सब बेसिक्स हैं, इस बेसिक्स के बाद हम धीरे धीरे टफ की तरफ जाएंगे, जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं जो नॉर्मल लैंग्वेज में टफ कहा जाता है वो इंटरेस्टिंग होता है बेसिकली। अभी भी हम एक जनरल फॉर्मूलाज ही कर रहे हैं। √a माइनस √b का होल स्क्वायर। सेम
राइट, रूट ए का होल स्क्वायर, रूट बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रूट ए, that is this and this cancel, this and this cancel, right? रूट 5 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर, जरा बताना क्या आंसर है? This is 5 plus 7 minus 2, 12 minus 2 रूट 35, यही आया है नहीं है? इजी है या नहीं? प्लीज forget, take it in your belief system, you are not doing math, you are solving a puzzle, and solving a puzzle means game, you are playing a game, right? Your accident in playing or pursuing with the mobile games, this is 10 times easier than mobile games. Now what's the worry? Most easiest, most interesting subject. The only thing which requires from your side, only two things: focus in the class, written practice at home. Bas, you will be the best student of maths. Next, clear hai? Second formula, third form, root a plus root b, root a minus root b, multiply. क्या होगा आंसर? रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर, आंसर इज ए माइनस बी, a minus a plus b, a minus b is a square minus x plus y, x minus y, x square minus y square. आंसर क्या है? क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? रूट 5 प्लस रूट 7, रूट 5 माइनस रूट 7, प्लीज टेल मी द आंसर. व्हाट इज द फाइनल आंसर? माइनस माइनस राइट? ये समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछो मुझसे, लिखो इसको, लिखकर प्रूव करो इस बात. सर यहाँ पे मेरा कर रहा हूँ, घर जाके चेक कर लूंगा. चलता है. आंसर आया? क्लियर? सबका आंसर आया? आपका शिवा, गोविंद, क्या आंसर आया? यही है ना आंसर? देखो, क्लियर? फोर्थ, आई थिंक तो समझ में आ रहा है. नाउ a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, ये किसके इक्वल होना चाहिए? ए स्क्वायर माइनस यस, करेक्ट. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के रूट से स्क्वायर कैंसिल. क्लियर? 5 प्लस रूट 7, 5 माइनस रूट 7, दैट मीन आंसर 25 minus 30. गलत है. 32. अच्छा माइनस हो गया ना. 80. हाँ, 7 क्या आंसर है? हैं? 25 minus 7 is the right answer. Very good. X plus y, x minus y, x square minus y square, कितना आ गया? 25 minus square root square. आंसर इज क्लियर है? आई थिंक सो ये आपको समझ में आ गया होगा, सारा क्लियर है. दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ अब हम जिन क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजिंग the denominator.
डिनोमिनेटर को रैशनल में बदलना है, डिनोमिनेटर को रैशनल में बदलना है, इज नोन एज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। कहने का मतलब 1/√3। शिव्या √3 रैशनल है या इररेशनल? इररेशनल है। क्वेश्चन है रैशनलाइज इट, रैशनलाइज इट्स डिनोमिनेटर। प्लीज ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं। हमें रैशनलाइज करना है, यानी कि √3 डिनोमिनेटर में जो है वो इररेशनल है, उस इररेशनल को किस में बदलना है? रैशनल में बदलना है। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में है उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे जो भी डिनोमिनेटर में है, खासकर जो इररेशनल है, √3/√3। 1 इंटू √3 क्या हुआ? √3 इंटू √3 क्या हुआ? √3 का होल स्क्वायर, राइट और नॉट? √3 का होल स्क्वायर क्या होता है? क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर क्या है? √3/। क्लियर है? जैसे √a मल्टीप्लाइड विद √a क्या होगा? √a का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर क्या आया बेटा? क्लियर है? तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल कैसे हुआ? ये क्या मैंने बताया था ना आपको, ये क्या था? a⁴ 1/2, 2/2, ये 2 यहां गया, ये a⁴ 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या है? क्या ये बात क्लियर है? याद रखोगे इसे, राइट? अब मैं कहता अगर √a इंटू √a इंटू √a तो क्या होता है? ये किसके इक्वल होता? यस, √a⁴। क्लियर बेटा जी? फाइनल आंसर इसका क्या होता? ये a⁴ 3/2 यस, करेक्ट आंसर। इसको हम क्या लिखते हैं? 1/2। ऊपर क्या है? 3। 1 इंटू 3 क्या हो गया? 3/2। इज दैट क्लियर? और एक बात याद रखना, a⁴ 3/2 कैन बी रिटन एज क्यूबिक रूट ऑफ a। ये क्लियर हुआ मैंने क्या लिखा है? a⁴ 3/2 इज व्हाट? क्यूबिक रूट ऑफ a। कैसे? दिस इज a⁴ 1/2 to power 1/3, तो क्या आया ये? a⁴ 1/6। सर a² है, लेकिन यहाँ क्या आना चाहिए था? yes। इसलिए जब कभी भी मैंने आंसर शीट चेक करी है तो देयर आर सम स्टूडेंट्स ये a⁴ 3/2 को उन्होंने क्यूबिक रूट ऑफ a लिखा है। क्या a⁴ 3/2 क्यूबिक रूट ऑफ a के बराबर है? याद रहेगा, दिस इज नेवर बी इक्वल टू, मैं रेड मार्क कर रहा हूं इसे, दिस इज नेवर बी इक्वल टू 1 अनदर, ये याद रखना। While checking answer sheets the last many years, there are some students जो a⁴ 3/2 को लिख देते हैं this is equal to cubic root of a, which is not true। क्लियर है ये बात? एग्रीड और नॉट? होना क्या चाहिए था ये? क्यूबिक रूट ऑफ a²। क्यूबिक रूट ऑफ a। क्लियर? यानी कि this should be written as this is what √a⁴, बेसिकली क्या है? √a⁴ 3 है ना, यहाँ पर प्रूव किया, राइट? गुड, क्लियर है यहाँ तक? तो जहां जहां मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट से वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें याद रखना है और उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। Now I asked you rationalize the denominator, करना जरा इसे करो। √3/3। आंसर नहीं, लेट मी जज के दूसरे सीख रहे हैं। सर दूसरा क्वेश्चन हाँ, क्या आंसर आया?
क्या आंसर आया? कितना टाइम लगेगा? कोई बात नहीं, गलत भी है तो भी बताओ। भव्या क्या है आंसर? नहीं आया, कोई बात नहीं, गलत है बताओ। हाँ कौन, क्या आया? सर सेकंड वाले का देखो, अभी भी जिनको डाउट है प्लीज यहाँ देखो, √6 का आया आपने, √6 ही आपने लिखा है, दोनों के आंसर्स गलत हैं। देखो 2/√3 मल्टीप्लाई करेंगे किससे? √3 से। बेटा 2, क्या 2 भी स्क्वायर रूट में है? हम √6 तब लिखते जब ये भी स्क्वायर रूट में होता। अब क्या है ये 2/√3, प्लीज यही देखो, इंटू √3/√3, तो 2√3 से खाली मल्टीप्लाई होगा, 2 बाहर रहेगा, √3 एज इट इज रहेगा। यही किया ना? हाँ तो 2 बाहर रहेगा बेटे। ये इस 3 के साथ मल्टीप्लाई तब होता जब ये भी स्क्वायर रूट होता। क्या ये स्क्वायर रूट में है? तो ये तो बाहर ही रहेगा। 2√3, √3 क्या होगा? √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसर, तो क्या आंसर आएगा? 2√3/, अब एक क्वेश्चन निकाल के दिखाओ, 5√3। अब देखो यहां 5√3 है, आपको सिर्फ इरेशनल लेना है। आपको मल्टीप्लाई करते समय और डिवाइड करते समय 5 नहीं लेना है, आपको सिर्फ इरेशनल लेना है। √3 क्लियर है? 5√3 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है वो भी बताऊंगा। पहले क्या लिया हमने? √3, तो ऊपर क्या आंसर हो गया? 3 इंटू √3 क्या हो गया? 3√3। यहां 5 है ही, √3 क्या हो गया? √3 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। 3√3, 5 इंटू 3√3/15, √3/5, यह आया ना? √3/5 आंसर होगा। क्लियर है? हाँ सर बैठ गया तो वो नहीं करना ना। अब आपने अगर इसे यू लिया 5√3 डिवाइडेड बाई 5√3 तो हो गया 15√3, 25, √3 इज 3, 15√3 75, बाद में भी तो काट हो गई। सर √3/5, इससे भी आंसर वही आ रहा है, इससे भी आ रहा है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंगली सिर्फ इरेशनल से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना। क्या ये बात क्लियर है? 7, 6√5, get the answer। करेक्ट आंसर। हाँ बेटा जी, आप दिखाना। ठीक है, व्हाट्स योर गुड नेम? सजल सजन, सजल सजल, अब याद रहे। हाँ और प्लट बोल दे वैल्यू होते 7√5/6, 6 इज रॉन्ग, 7/5 अपॉन 30 होगा। ये देखो इसे कैसे लिखेंगे? 7, 6√5 है ना, इंटू √5 अपॉन √5, तो 7√5, √5 और √5 भी तो मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? √5 का होल स्क्वायर, √5 इज √5 का होल स्क्वायर और 6 एज इट इज। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, इंटू 5, 7√5/30, 8
3√7 बताना। घबराओ मत, गलत भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट आंसर, राइट। 21 लिखाना पे भव्य। So this is 8 3√7 into √7 upon √7 8√7 3√7 का होल स्क्वायर। तो 8√7 3 into 7 8√7 by 21। क्लियर है? सर अगर हमारा आंसर लास्ट टाइम तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, बस बिल्कुल आंसर के जो फाइनल स्टेटमेंट है लास्ट टाइम मतलब इज इक्वल टू करके हमने आंसर एक दो डिजिट आगे पीछे लिख दिया, तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है बिल्कुल लास्ट टाइम तक बिल्कुल ठीक जा रहा है, फिर बिल्कुल एंड में हमारी गलती हो गई तो मार्क्स आधा नंबर कटेगा, एक कटेगा पूरा। मैं तो पूरा काटूंगा, मेरे टेस्ट में पूरा कटेगा। और मेरे टेस्ट और दूसरी बात नहीं, अगर लोएस्ट भी ना भी करो तो भी फुल मार्क्स। अगर लॉजिकली गलत किया तो फुल मार्क्स काटूंगा, क्योंकि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय टेस्ट इज टू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, राइट। तो अगर वीकनेस छोटी से छोटी भी होगी तो वो भी पिच होनी चाहिए, सो दैट के फाइनल स्कूल का ऑफिशियल जो टेस्ट है वो कभी गलत ना हो। इज दैट क्लियर? पासिंग मार्क्स 80% है, मेरे टेस्ट में पासिंग मार्क्स कितने हैं? 80%। 80 अगर 100 नंबर का पेपर है, मान लिया अगर 40 मार्क्स का पेपर है तो 32 मार्क्स से अगर नीचे है तो आप फेल हो मेरी निगाह में, क्योंकि आप 40% 50% के लिए तो आपको किसी कोचिंग की जरूरत ही नहीं थी, इवन 80% के लिए भी कोचिंग की जरूरत नहीं है, राइट। तो पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए? 80। जब मैं टेस्ट लूंगा पूरा जो क्लास में पढ़ाया है सिर्फ वही दूंगा, थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? लेकिन आप खुद कहेंगे सर आपने जो कराया है 100% वही पेपर दिया है। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या 80% मार्क्स नहीं आएंगे? 100% आएंगे। एंड दैट इज माय ऑब्जेक्टिव, राइट। ये क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट फेज की तरफ जा रहे हैं। इतना तो आपको ढंग से समझ में आता जा रहा है, अब हम थोड़ा और हायर वर्जन की तरफ चलते हैं। √3 plus √7 rationalize the denominator। क्वेश्चन है rationalize the denominator। क्या डिनोमिनेटर रैशनल है या इरेशनल है? अब हमें इस डिनोमिनेटर को रैशनल में बदलना है। प्लीज ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। ये है ना, जो डिनोमिनेटर है उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे विद अपोजिट साइन। √3 माइनस √7 √3 माइनस √7। क्या ये बात क्लियर? डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे किया? डिनोमिनेटर से, लेकिन प्लस की जगह क्या लिया? अगर माइनस होता तो क्या लेता? क्या ये बात क्लियर है? अब 1 मल्टीप्लाई इससे होगा तो आंसर क्या यही रहेगा, तो कुछ बदल जाएगा? √3 माइनस। अब जरा नीचे ध्यान से देखो, √3 प्लस √7 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 माइनस √7। तो कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है यहाँ? a प्लस बी a माइनस बी, अभी बताया था ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर क्या हुआ? √3 माइनस √7 डिवाइडेड बाई √3, स्क्वायर से कैंसिल हो गया ना, -7। तो √3 माइनस √7 डिवाइडेड बाई -4। क्लियर है या नहीं?
बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है। माइनस से जो ऊपर भी चला गया या माइनस ऊपर चला गया तो यहाँ ब्रैकेट ले लेना, डिवाइड बाई 4 आंसर। क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? ये माइनस माइनस यहाँ माइनस है, ये माइनस इसके साथ प्लस होगा ना जब ब्रैकेट खोलेंगे तब। जब हम ब्रैकेट नहीं खोल रहे तो यूं ही छोड़ दो। अगर ब्रैकेट खोल के लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो -√3 माइनस माइनस प्लस √7 डिवाइड बाई 4, राइट। और इसको हम और आगे कैसे लिख सकते हैं? √7 माइनस √3 डिवाइड बाई 4। क्लियर है या नहीं? √7 पहले, क्लियर बेटा? ये समझ में आ रहा है ना? कर लोगे या नहीं? दूं क्वेश्चन? अच्छा करके दिखाओ। 1/√7 प्लस √3। आंसर आया अपॉन 4 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। यही आया ना बेटे शिव्या? देखो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? दिस मल्टीप्लाइड विद √7 माइनस √3। ध्यान से फटना नहीं चाहिए। √7 माइनस √3, क्लियर? ध्यान से, बहुत ध्यान से। 1 into this is what? √7 minus √3, a plus b, a minus b, a square minus b square, square root से square cancel, √7 minus √3 divided by 7 minus 3, √7 minus √3 divided by 4। ये आंसर आया है। That's great, very nice। इसकी जेरॉक्स करके रखो फटाफट, बच्चों को देना। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/√2 प्लस √3 करके लिखो। -√2 प्लस √3। हाँ, माइनस √2 प्लस √3। यानी कि √3 माइनस √2, यही आया है। यस। तो बस वो माइनस वेरी गुड, ठीक है। क्लियर? इसे देखो तो ये क्या हो जाएगा? 1 अप इज मल्टीप्लाइड विद √2 माइनस √3, √2 माइनस √3, √2 माइनस √3। भव्य आ रहा है आंसर? √2 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, √2 माइनस √3 -1, ये माइनस यहाँ आ गया, √2 माइनस √3। तो 1/√2 प्लस √3 इज -√2 प्लस √3, यानी कि √3 माइनस √2। क्या ये आंसर सभी का आया है? अगर नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा बताऊं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये ओहो, सॉरी सॉरी, ये देखो ना, दिस वाज अवेलेबल टू अस। तो अब इसी को मैंने क्या लिखा? -√2 प्लस √3। तो ये कन्वर्ट हो गया ना, ये थे हमारी वैल्यू, ये था ना क्वेश्चन। तो ये -√2 प्लस √3, तो क्या लिख सकते हैं ना हम? √3 माइनस √2। क्या यहाँ तक आ गया था आंसर? आप तो इसके बाद ये माइनस ऊपर चला गया, या माइनस के बाद तुरंत ब्रैकेट लो, ब्रैकेट लेना मस्ट है। जैसे ब्रैकेट को ओपन करोगे तो -√2 प्लस √3। क्लियर हो गया? √3 माइनस, क्लियर है? एक बात याद रखना, अब 1/√2 प्लस √3 में डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, 2 बड़ा है या 3 बड़ा है? यानी कि 2 इज लेस देन 3। तो जब कभी भी ऐसा होगा तो इसका सीधा दिमाग में आंसर रखना, शॉर्टकट बता रहा हूं, इसका आंसर हमेशा ये होगा। कहने का मतलब है अगर √a प्लस √b है और a b से छोटा है, a b से छोटा है, तो 1/√a प्लस √b का आंसर क्या होगा? b माइनस a। करके देख लेना, यही आएगा। याद रहेगा या नहीं? नहीं समझ में आया है? अब मैं आ रहा हूं, पहले ये क्लियर है भाई? 2 3 से छोटा था ना, ये a है ये b है।
अगर a छोटा है b से तो आंसर ही क्या होगा, रूट b माइनस रूट a डायरेक्ट। ये तुम्हें चेक करने के लिए बता रहा हूं कि जब तुम कैलकुलेशन करो तो तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारी कैलकुलेशन सही भी है या गलत है, राइट। अब अगर ऐसा हो रूट a प्लस रूट b, ये a बड़ा है b से, तो 1/√a प्लस रूट बी इज रूट a माइनस रूट बी आएगा हमेशा। कैसे, 1/√7 प्लस √3 निकालना आंसर। चलो एक काम करता हूं, मैंने यहाँ 6 ले लेता हूँ, सॉरी 6। What should be the answer? तो मैंने कहा था ना अगर a बड़ा होगा b से तो क्या आंसर होगा, रूट a माइनस रूट बी। तो क्या आंसर आया, √7 माइनस √6। यही आया या नहीं आया, क्लियर है, ग्रेट। आई थिंक तो समझ में आता जा रहा है, ओके। नाउ 4 plus 3√5 divided by 4 minus 3√5, rationalize the denominator, ये क्वेश्चन, राइट। अब देखो मैं कर रहा हूं उसे, पहले मैं कर रहा हूं उसे, सब यहां दिखेंगे और फिर मैं आपको ऐसे और क्वेश्चन दूंगा वो आप निकालें। क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में एक भी इरेशनल नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रैशनल, ये रहेगा। तो हम क्या करेंगे, रूल क्या कहता है, 4 plus 3√5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3√5, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, 4 plus 3√5 किसे करेंगे, और नीचे भी, हाँ वेरी गुड बेटा, जो यहां लिखा है ना वही लिखेंगे ऊपर और नीचे भी, उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस प्लस, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। इज दैट क्लियर? अब आप ध्यान से देखो, दिस न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, यानी कि 4 plus 3√5 4 plus 3√5 डिवाइडेड बाई 4 minus 3√5 4 minus 3√5, क्लियर है या नहीं, 4 plus 3√5 4 minus this 4 plus 3√5, क्लियर। अब इसे ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में a प्लस b, a प्लस b, यही है या नहीं है, तो ये क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b, क्लियर है या नहीं, क्लियर। तो क्या लिख सकता हूं मैं से, a प्लस b का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस b, a प्लस b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्लियर है, राइट। अब मैं ऊपर को सॉल्व कर रहा हूं, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, क्लियर, डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 60 3 का स्क्वायर 49 45 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 और √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 यस, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 क्लियर है ये बात, ये समझ में आया। इसे मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर 9, √5 का होल स्क्वायर 5। क्या ये बात सबको क्लियर है, बिल्कुल माइंडफुली बैठे हो ना, अलर्ट हो रहा है क्लास में, राइट। ऑलवेज सिट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद योर स्पाइनल कॉर्ड, इमीडिएट लर्निंग, दिमाग सीधा साथ लेता है उसमें, कभी भी यूं नहीं बैठना,
always be at 90 degree. That always maintain your alertness in the class. Clear है? 4 का स्क्वायर 45 3 का होल स्क्वायर 9 इंटू 5 का होल स्क्वायर रूट 5 का प्लस 2 इंटू 4 8 इंटू 3 24 राइट रूट 5. क्या ये बात क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? 2 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 45. क्लियर? Then 16 plus 45 plus 24 root 5 divided by 16 minus 45 29 minus 16 plus 45 कितना हुआ 45 plus 16 61 plus 24 root 5 divided by minus. अभी माइनस ऊपर ले जाओगे तो ब्रैकेट लिख देना. क्या ये बात क्लियर है? एंड हेंस दिस बिकम्स द फाइनल आंसर. क्या ये समझ में आ गया आपको? किसी को कोई डाउट? भव्या, शिव्या, प्रोसीजर क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हुआ है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्लियर है ना? क्लियर तुम्हें भी? अब इधर देखो a रूट बी का होल स्क्वायर अगर मैं लिख रहा हूं तो a का स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर कितना होता है? राइट ये ध्यान रखना. एग्रीड? नाउ गेट मी द आंसर ऑफ दिस. करके दिखाओ. दोज अटेंडिंग द क्लास ऑनलाइन शुड आल्सो डू इट. क्या हो पा रहा है? कोई बात नहीं. देखो इसको मैं क्या लिखूंगा? इससे डिवाइडर मल्टीप्लाई करेंगे. बताओ 5 डिवाइड मल्टीप्लाई किससे करेंगे? वेरी गुड. एग्रीड? यानी कि ऊपर क्या है 5 प्लस रूट 6 इंटू 5 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाई a माइनस बी ए प्लस बी. क्या अभी तक आपने ऐसे ही किया है या नहीं? ऑनेस्टली बताना, अपनी गलती देखना कहां की है. क्लियर? अब a प्लस बी इज a प्लस बी का होल स्क्वायर 25 माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर 6. क्या ये क्लियर? अब a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू b डिवाइडेड बाई 19. क्या ये भी किया है आपने? यहां तक किया है? ऑनेस्टली चेक करो. समझ में आ गया कैसे करना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. राइट? ये क्या हो गया 25 रूट 6 प्लस 10 रूट 6 डिवाइडेड बाई 19 31 प्लस 10 रूट 6 बाई. ये आंसर होगा. क्लियर? एग्रीड? बेटा जी समझ में आ गया ना ये? अब कर सकते हैं ना ऐसी प्रॉब्लम? तो मुझे पेज दिया था भी दिखाना मुझे. अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 5 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 3. ठीक है. थर्ड और फोर्थ करना. डेट आज की डालनी है पेंसिल से. क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. फाइंड ए एंड बी.
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड गिवन है। हमें कुछ इसे इस तरीके से डील करना है कि हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, याद रखना, सबसे पहले हमारा काम वही होगा जो हम पिछले 15-20 मिनट से करते आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 5 + 2√3 डिवाइडेड बाई 7 + 4√3 रैशनलाइज करेंगे इसे। तुम्हें मालूम है कैसे करना है, मालूम है ना? करो, ऐसे फ्रीज कर रहा हूं, करो इसे रैशनलाइज। इलेवन माइनस 6√3। देखिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्लियर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब बेटा 5 को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई विद द सेकेंड एंटायर टर्म, समझ में आ रहा है? ऐसा किया, फिर प्लस 5 इंटू दिस, फिर प्लस दिस इंटू दिस, राइट और नॉट? 5 इंटू ये क्या स्टेप समझ में आ गया? 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4√3 का स्क्वायर है ना, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 16 इंटू 3 क्या हो गया? क्लियर? समझ में आ रहा है? कहां कुछ गलत किया तो क्लियर है बेटा? 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 4 20, √3 एज इट इज, क्लियर है? 5 इंटू 4 नॉर्मल रैशनल से रैशनली मल्टीप्लाई होगा, √3 एज इट इज, प्लस 2 इंटू 7 14, √3, 2 इंटू 4 8, √3 इंटू √3, √3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 35। अब ये -20√3 प्लस 14√3, -20√3 प्लस 14√3, भूल जाओ √3 को, -20 प्लस 14 क्या होता है? बोलो, -20 प्लस 14 क्या होता है गोविंद? -6, -6 √3 एज इट इज। पहले -20 प्लस 14 किया, कितना आया? -6, और √3 अटैच कर दिया। ऐसे हुआ कैसे ये? -20√3 प्लस 14√3 में से मैंने √3 कॉमन ले लिया, तो -20 प्लस 14, एग्रीड और नॉट? -20√3 प्लस 14√3, -20 प्लस 14 कितना हो गया? -6√3, -6, क्लियर है? देन
8 स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 8 इंटू 3 क्या हुआ 20। तो 35 माइनस 24 कितना आया 11 माइनस 6 रूट 3 डिवाइडेड बाई 1। ये आंसर आया या नहीं? यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज कर दिया या नहीं? अब डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल है, राइट, एंड हेंस इसका मतलब ये हुआ कि 5 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4 रूट 3, जब हमने रैशनलाइज कर दिया इसे तो किसके बराबर आया ये 11 माइनस 6 रूट 3। क्लियर है? यहां सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको जब रैशनलाइज किया आया इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर गिवन है, राइट, क्योंकि हमारा एम रैशनलाइज डिनोमिनेटर करना नहीं, क्या है एम है हमारा ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये रैशनलाइज करने के बाद ये आया, तो ये भी किसके इक्वल है ए प्लस बी रूट 3 के इक्वल है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस, राइट और नॉट। अब अगर आप ध्यान से देखो 11 प्लस माइनस 6 रूट 3 मैंने लिखा है इसे, 11 प्लस माइनस को अगर मैं करूं तो क्या रहेगा, क्या इसमें और इसमें कोई चेंज है भाई? अगर प्लस माइनस में से किसकी डोमिनेंसी ज्यादा होती है, माइनस की। तो मैंने 11 माइनस 6 रूट 3 को 11 प्लस माइनस 6 रूट 3 लिखा है। क्यों लिखा भी क्लियर करता हूं, इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? अब ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के बराबर है। कितनी टर्म्स है लेफ्ट साइड में, कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द लेफ्ट साइड, 2, 1 and 2 सेपरेटेड विद दिस प्लस। राइट साइड में भी कितनी टर्म है, 2 टर्म्स हैं, 1 and 2। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ओनली व्हेन corresponding terms are equal, only when the first term of the left side is equal to the first term of right side. Second term of left side must be equal to the second term of right side. ये ऐसे एरो बनाना मत, मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं। कहने का मतलब है 11 प्लस माइनस 6 रूट 3 is a plus b रूट 3 implies to me this is possible when a की वैल्यू क्या होगी 11, this means and, मैथ्स में से and कहते हैं, सिंबल है and का, and माइनस 6 रूट 3 is equal to b रूट 3। क्लियर है या नहीं, राइट? अब ये रूट 3 नीचे आ गया, ये रूट 3 नीचे आ गया, is equal to b रूट 3 से रूट 3, तो b की वैल्यू कितनी आई, हम यहां भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे। इज दैट क्लियर? आई थिंक सो ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं आपको समझ में आया। अगली क्लास में हम इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ये पेज ऑर्डर है, पीछे का नहीं देना, ठीक है। और ये है मैं, हाँ कौन सा, हाँ ये वाला, और ये MIQ में देखो। अब आपको ये MIQ में दे रहा हूँ, इज दैट क्लियर? इस MIQ में से ये क्वेश्चन आप निकाल के आएंगे, इस क्वेश्चन को निकालेंगे आप, और ये तो हमने निकाल ही दिया है, और इसको भी करेंगे। क्लियर? आप एक इस क्वेश्चन को भी करेंगे और इस क्वेश्चन को भी करेंगे। ये आपका होमवर्क है। पिछली क्लास का होमवर्क किया आपने? यस सर।